Every day in this class, I'm going to talk about 4 things. First, we will talk about power question. Every day, I'm going to ask you a question. So, step 1, you can write it down somewhere in your notebook. In my class, I'm structurizing my class. I'm telling you what exactly you are going to learn in my class. Okay? So, my class will have 4 activities or 4 things. Number 1, power question. Now, what do you mean by power question? Power question is something which I'm going to ask you. एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उस सवाल का क्या जवाब है वो आपको मुझे बताना. So there'll be a power question every day. Second thing, second activity which I will lead is power personality. I will talk about a person every day. So this personality will be like somebody who has had a kind of impact on a global scale. कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दुनिया में किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा किया. वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, वो कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, वो व्यक्ति जो है लिटरेचर की फील्ड से हो सकते हैं, वो किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड से हो सकते हैं. We're going to talk about one personality and every day power personality. That will be the second activity we're going to go through. Third thing which we are going to do is power method. Now, power method is something which will help you to make your life better. I will give you tools, techniques, processes. So, इस तरह के सिद्धांत, इस तरह के प्रिंसिपल्स, इस तरह के प्रैक्टिकल मेथड्स जो आपके जीवन को बदल सकते हैं. Something which you need to practice and there'll be a big change, big positive change in your life. So that will be power process, या power method, right? And fourth thing which we're gonna do is power practice. What this power practice is all about? In this, we will do a little practice of all the principles and methods and techniques. Either we will practice it in the live class or I will tell you how to practice this thing at home. So power practice, कोई ऐसी चीज जिसको आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, उसका मेथड आपको समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है. और मेथड के समझने एक अलग बात हो गई, वो है पावर मेथड जो हम तीसरी एक्टिविटी में करेंगे. तो हम इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे, अंडरस्टैंडिंग के पार्ट पे, इंस्पिरेशन के पार्ट पे और इंटरेस्ट के पार्ट पे काम करेंगे. सबसे पहले दे शुड बी इंटरेस्ट इन यू एंड दिस पावर क्वेश्चंस विल क्रिएट काइंड ऑफ interest in you about everything. Second, these power personalities will inspire you. They will motivate you to do better in your life. These power methods will build your understanding. They will help you to, have better understanding of life. So there'll be a, better conceptual clarity so that you can make your life really, really great, not for you, but for your family, for the whole nation, for the globe. And then fourth thing which we're going to talk about is practicing, how to practice these methods, right? So we're going to do these 4 things every day. Is it clear, guys? Now, yes, sir. Oh, good. So let's start with today's power question. हम आज के पावर क्वेश्चन से आज की क्लास को शुरू करते हैं. और आज का पावर क्वेश्चन क्या है? आज का पावर क्वेश्चन है, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन किसे कहते हैं? आज का पावर क्वेश्चन. Now you guys can give me your answers on chat and then I will slowly explain you. Education किसे कहते हैं? That is the power question of the day. अब आपके मन में क्या क्या सवाल मतलब क्या क्या आंसर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं? आपके हिसाब से एजुकेशन क्या है? किस व्यक्ति को कहेंगे कि यस, ऐसा व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा आदमी है? तो आई वॉन्ट टू सी योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स. तो जैसे दैविक ने कहा, एजुकेशन इज नॉलेज ऑफ एनीथिंग. ओके, वेरी गुड. तो इन्होंने कहा
दिस इज नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की जानकारी को हम एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा किसे कहते हैं? जानकारी को, नॉलेज को, ज्ञान को, राइट? आई वॉन्ट रिस्पॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी वन इन द क्लास, एवरीबडी शुड रिस्पॉन्ड। ओके, तो देविक ने कहा नई चीज सीखने को ओके एजुकेशन कहता है। अगर आपको एजुकेशन को एक शब्द में कहना हो, एक दो शब्दों में कहना हो, तो आप कैसे कहेंगे? तो दैविक ने कहा नॉलेज इज एजुकेशन। कमल ने क्या कहा? कमल ने कहा कि स्किल, वैल्यूज, मॉरल्स, बिलीव्स, राइट, ओके, एंड हैबिट्स, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। ओके, की ऑफ सक्सेस, भव्या जैन ने कहा। सुदीप्ति ने कहा एजुकेशन इज द की टू सक्सेस एंड थिंग्स दैट टीचेस अस हाउ टू लिव अ लाइफ इन अ प्रॉपर वे। ओके, गुड, वेरी गुड। सो एजुकेशन किसे कहते हैं? हाँ, अनुशासन को एजुकेशन कहते हैं। और अनुशासन किसे कहते हैं? प्रॉपर वे में किसी चीज को करना। वेरी गुड। और वो प्रॉपर वे क्या है? क्या आप एजुकेटेड हैं? कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझने वाली बात है। तो स्किल्स, मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, देखो, स्किल्स, इंप्रूविंग योर सेल्फ, पावर टू क्रिएट एंड कॉम्प्रिहेंड। कुंज ने कहा, सौम्या ने कहा स्किल्स, सुदीप्ति ने कहा कि हाउ टू, दिस इज की टू सक्सेस। तो मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देता हूं उपनिषद का। उपनिषद के ऋषि से जब पूछा गया कि शिक्षा किसे कहते हैं, व्हाट इज एजुकेशन, तो उन्होंने उसे कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा अनुशासन ही शिक्षा है, आत्म अनुशासन। अनुशासन में भी कैसा अनुशासन? आत्म अनुशासन। और अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि आत्म अनुशासन क्या है? शिक्षा और ज्ञान न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि कमल ने कुछ लिखा है, यह अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है कमल, लेकिन तुम इंटरनेट से कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है ना? क्योंकि जो भाषा आप लिखते हो, नहीं, उससे थोड़ा कमलेश सर को आइडिया होता है। आई डोंट वांट दैट यू गो टू इंटरनेट एंड कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम देयर। मैं क्या चाहता हूं बेटा, तुम अपने विचार मेरे साथ शेयर करो। तुम उसके बारे में कमल क्या सोचते हो वो मुझे बताओ। तो हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, अगर हमसे पूछा जाए कि शिक्षा क्या है, तो हमारे यहाँ शिक्षा को आत्म अनुशासन से जोड़ के देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति में आत्म अनुशासन है, आत्म अनुशासन किसे कहते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन। अगर किसी व्यक्ति में सेल्फ डिसिप्लिन है और वो सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, थोड़ा और बढ़ रहा है, थोड़ा और बढ़ गया है, थोड़ा और बढ़ गया है, इसका मतलब वो बच्चा शिक्षित हो रहा है, वो, उसको हम कह रहे हैं कि वो एजुकेशन ले रहा है। और लेकिन अगर आपके भीतर आत्म अनुशासन नहीं आया है और वो एक, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए, आपको उठाने के लिए मम्मी को आपके साथ जिद्दोजहद करनी पड़ती है, पुश करना पड़ता है। हॉस्टल में अगर आपके टीचर को आपको उठाना पड़ता है, तो उसका मतलब हुआ नहीं। खाने के लिए बोलना पड़ता है, टाइम पे पढ़ाई करने के लिए बोलना पड़ता है, हर चीज के लिए, कॉपी में काम करने के लिए टीचर को 4 बार डांटना पड़ता है, एग्जाम की तैयारी के लिए आप पे प्रेशर बनाना पड़ता है। तो इसका मतलब यू आर नॉट गेटिंग एजुकेटेड, आप शिक्षित नहीं है, आपको शिक्षा ठीक से मिल नहीं रही है। तो शिक्षा का तात्पर्य सबसे पहले समझना चाहिए। आप शिक्षित हैं तो आपसे आपकी शिक्षा आपके अनुशासन के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। तो जैसे भव्या राजगुरु ने कहा कि नॉलेज ऑफ थिंग्स, तो जानकारी होना, फिर उनको इम्प्लीमेंट कर पाना, उनको एग्जीक्यूशन में ला पाना जीवन में, तो आत्म अनुशासन वही प्रक्रिया है। आत्म अनुशासन की प्रक्रिया क्या करती है? सेल्फ डिसिप्लिन क्या करता है? वंस यू हैव सेल्फ डिसिप्लिन, यू हैव गुड हैबिट्स इन लाइफ। व्हेन यू हैव गुड हैबिट्स इन योर लाइफ, you become better every day. When you become better every day, that means you are educated.
So if yesterday you get up at 6 और आज आप तो 6 बजे उठे या 6 बजे से थोड़ा सा पहले उठे, ओह वेरी गुड, देयर इज अ लिटिल इंप्रूवमेंट इन यू। कल आपने 4 घंटे पढ़ाई की, आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से 4.25 घंटे पढ़ाई की, 15 मिनट ज्यादा पढ़ाई की, ओह देयर इज इंप्रूवमेंट इन यू। सो आर यू मेकिंग योरसेल्फ बेटर एवरी डे? क्या आप दिन प्रतिदिन अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाते हैं, ज्यादा सशक्त बनाते हैं, ज्यादा ताकतवर बनाते हैं, ज्यादा अच्छा बनाते हैं क्या? और अगर आप अपने आप को हर दृष्टिकोण से एट द लेवल ऑफ physiology, is your body is getting stronger, flexible, are you enhancing your endurance of the body? तो आपका शरीर की शक्ति सशक्तिकरण हो रहा है क्या? शरीर ताकतवर हो रहा है क्या? आपका मन ताकतवर हो रहा है क्या? आपके विचारों में क्लैरिटी आ रही है क्या? तो डेली हम थोड़ा सा अच्छा हो रहे हैं क्या? और अगर अच्छे हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी शिक्षा हो रही है। और अच्छे होने के लिए हमको क्या चाहिए? आत्म अनुशासन चाहिए, और आत्म अनुशासन को ही शिक्षा कहते हैं। ओके, तो दैट इज द डेफिनेशन। और बाकी आप सब बच्चों ने जो लिखा वो गलत नहीं है बेटा, वो भी ठीक है। दैविक ने जो लिखा, कमल ने जो लिखा, मान्या ने जो बताया, है ना, ईशी ने जो बोला कि स्किल्स मतलब एजुकेशन, हिमांशु ने कहा इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये आपकी सब बातें सही है, इसमें से कोई भी बात गलत नहीं है। ऑल आंसर्स आर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कोर है, आपको सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपके पास आत्मानुशासन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। तो आप तब तक सीख नहीं सकते जब तक आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। तो अपने लाइफ को अच्छे करते जाना, अपने आप को अच्छे करते जाना, ये शिक्षा का मूल तात्पर्य है। यू गॉट दैट? तो आपको पहचानना होता है मेरे में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पॉजिटिव बदलाव हैं जो मुझे लाने, और उनके लिए फिर मेहनत करनी। तो ये आज का पावर क्वेश्चन था। कल का क्वेश्चन हम फिर कल डिस्कस करेंगे। नव्या ने लिखा है एजुकेशन इज अ प्रोसेस टू मेक आवर लाइफ मोर स्किलफुल। बिल्कुल ठीक है ये बात नव्या, जीवन में ज्यादा स्किलफुल होना, लेकिन ये तभी संभव है बेटा जब हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन है, जब मम्मा को जगाना नहीं पड़ता, जब मम्मा को खाने के लिए पीछे भागना नहीं पड़ता, हम टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से अपना काम करते हैं, उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाते हैं, हम मम्मी पापा का ख्याल रखते हैं, हम अपने आसपास के बर्ड्स का ख्याल रखते हैं, पंछियों का ख्याल रखते हैं, हम आसपास की गाय का ख्याल रखते हैं, हम जानवर कुत्ते का ख्याल, हर एक जीव का हम ख्याल रखते हैं हमारे आसपास। तो वो जब हम एक आत्म अनुशासन की प्रक्रिया में एंटर करते हैं तो सही मायने में हमारी एजुकेशन शुरू होती है। ठीक है, तो ये था आज का पावर क्वेश्चन।